Good morning, lovely bedtimes. Welcome back after your winter vacations. Okay, I hope you have enjoyed your vacations very much. So, beta, if you remember, before the vacations, we started this chapter number 6, using tux paint. And we read that what is tux paint, what are the different parts of tux paint, how we can create a new picture, and how to color the new picture. So, let's quickly revise what are the steps to open tux paint, what are the different parts. Okay, so let's see practically. So beta, this is our tux paint icon. I will just double click and just open it. Okay, and after double clicking, a screen like this appears on your monitor. Now wait for just some time, for a few seconds. Okay, now this is the main screen of our tux paint window, and as you can see, there are four main parts of this tux paint screen. This is your toolbar, in which different tools are given. Next is your colors bar, from which you can choose different colors. This is your selector, okay, in which different tools are given, and this white blank area is known as your drawing area. Okay. So beta, our next topic was creating a new picture, how we can create. So let's quickly revise the steps. Okay, let's see here practically on the screen. Number one is click on this new tool. Okay, fine, and then click on this. And now in this topic beta, we have learned that how we can open a ready-made picture. So what I will do, I will bring this pointer on this down arrow. दिस इज़ द पॉइंटर इन द हैंड शेप. आपका जब ये पॉइंटर हैंड शेप से आप अपने पॉइंटर को यहाँ लेकर आइए, ये भी डाउन एरो में आ गया है. नाउ क्लिक इट until and unless you get your ready-made picture. So अब ये मेरी ready-made picture आ गई है. So now I will select this picture by single clicking on it. Okay, so now as you can see, a green border has come around this picture. That means ये picture अब select हो चुकी है. Our last step is to click on this open button. Okay, now as you can see, this picture has come on the screen. Now our next topic was coloring this picture. Again, what we will do, okay, now click on this magic tool. Click on this magic tool, and our second step was that you have to click down arrow here from the selector. Now as you can see, after clicking on this down arrow beta, what you have to do, you have to choose this icon, fill with magic effect. Okay, this icon. Now अब ये जो मेरा fill magic effect है, ये मेरा इधर टूल बार में दिया हुआ है. So I will just click on this. ठीक है, fine. Now click on this. Next, our next step is to choose any color of your choice from the colors bar. अब आपको colors bar में से कोई भी कलर अपनी पसंद का चूज़ करना है. सो आप क्या करेंगे, अपना पॉइंटर आप उस कलर पे लेकर आएंगे. सपोज आई वांट ऑरेंज कलर, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस. जब आप किसी भी कलर को चूज़ करेंगे बेटा, एज यू कैन सी देर इज़ अ ब्लू बॉर्डर अराउंड दैट कलर. इसका मतलब है कि आपने कलर को सिलेक्ट कर लिया है. नाउ ब्रिंग द पॉइंटर inside this picture, okay, and just single click it. As you can see, now we have colored this picture. अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं. कैसे, सपोज आई वांट ग्रीन कलर. सो अब मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ क्लिक कर दूँगी, तो मेरे ये फिश का कलर चेंज हो जाएगा. सो आप कितनी बार चाहें बेटा, इसका अपनी रेडीमेड पिक्चर का कलर आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है. So beta, now come to this next page, that is page number 50. Okay, now here is a smart tip. If you make a mistake while working in the tux paint, बेटा सपोज आप टक्स पेंट में वर्क ड्राइंग कर रहे हैं और आपसे कोई मिस्टेक होगी, तो आप क्या करेंगे, यू कैन क्लिक द अनडू बटन इन द टूल बार. अब सपोज आपसे कोई मिस्टेक होगी ड्राइंग करते वक्त, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. देर आर टू मैथड्स, दो तरीके हैं इसमें. एक तरीका है बेटा, फर्स्ट मैथड इज
यू कैन क्लिक ऑन दिस अंडू बटन इन द टूल बार. ठीक है, सो जो आपकी जो मिस्टेक है वो करेक्ट हो जाएगी. सेकेंड मेथड आपका है, जैसे आप अपनी नोटबुक में आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप रबर से उसको इरेज करके करेक्ट करते हैं. सो इन द सेम वे बेटा देर इज़ अ इरेजर टूल ऑल्सो, जिस पे आप क्लिक करके अपनी आपने अगर कोई मिस्टेक करी है तो आप उसको इरेजर पे क्लिक करके आप उसको ठीक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज USING using STAMPS stamps. Underline this heading. Now what is this stamp tool? Come to this line. Underline this blue word, stamp tool. Shows small ready-made pictures. Ready-made means bani banai, which can be used like stickers. Now beta there is a tool in your tux paint in which with the help of which beta we can use the pictures like stickers. जैसे आप अपनी नोटबुक में अपनी नेम स्लिप लगाते हैं, सिर्फ उसको आप एक पेपर से हटाकर आप उसको जस्ट पेस्ट करते हैं अपनी नोटबुक में. सो इसी तरह से आपके टक्स पेन पे एक टूल होता है, स्टैम्प टूल, जिसमें रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं जिसको आप स्टिकर्स की तरह से यूज़ कर सकते हो. नाउ देयर आर डिफरेंट अलग अलग CATEGORIES कैटेगरीज मीन्स टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स. अब आपको बहुत अलग अलग तरह के स्टैम्प्स मिलेंगे, सच एज एनिमल्स. आपको बहुत अलग अलग एनिमल्स की फोटोज अगर पेस्ट करनी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर बेटा फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ठीक है, सो लेट अस पेस्ट स्टैम्प्स इन द ड्राइंग कैनवस. तो अब हम क्या करेंगे, अपने ड्राइंग कैनवस में हम स्टैम्प्स कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम अभी स्टेप्स के थ्रू प्रैक्टिकली समझेंगे. ठीक है बेटा. सो बेटा नंबर 1 स्टेप इज, कम टू स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन अंडरलाइन दिस ब्लू वर्ड स्टैम्प टूल एंड क्लिक बिलो द पिक्चर. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे. जस्ट सी ऑन दिस टूल बार बेटा, दिस इज़ अवर स्टैम्प टूल. ये हमारा स्टैम्प टूल है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे. ठीक है, ओके, ब्रिंग योर पॉइंटर ऑन दिस स्टैम्प टूल. फाइन, अब इस पर हम क्लिक कर देंगे. फाइन, नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप. क्लिक लेफ्ट और राइट एरोज टू लुक फॉर मोर कैटेगरीज. CATEGORIES कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प्स. अब बेटा ये कहते हैं कि इसमें जब आप स्टैम्प टूल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिलेक्टर में 2 एरोज आती हैं, लेफ्ट या राइट. अगर आपको जिस तरह की कैटेगरी की मीन जिस टाइप का स्टैम्प चाहिए, एनिमल्स का चाहिए, फ्रूट्स का चाहिए, बर्ड्स का चाहिए, बहुत सारी, तो वो आपको मिल जाएंगी. तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, सी हियर, दिस इज अवर सिलेक्टर. अब यहाँ आप देखिए देयर आर 2 एरोज, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो. सो हम इनमें से किसी भी एक एरो पे हम तब क्लिक करेंगे जब हमें कोई और कैटेगरी की स्टैम्प चाहिए. ये तो आप बर्ड्स देख रहे हैं इसमें. ठीक है बेटा. नाउ अब मैं किसी और कैटेगरी की, सपोज मुझे बर्ड्स नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ क्लिक करूँगी. देखो आगे ये है आपकी पेंगुइन की पिक्चर. ठीक है, मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं आगे क्लिक करूँगी. फाइन, अब मुझे ये भी नहीं चाहिए. अब मैं सपोज़ कीजिए मुझे और आगे चाहिए तो मैं आगे कर दिया. अब ये हैं आपके बहुत सारे पिक्चर्स. अब देखो ये बैक साइड, ठीक, ये देखिए. उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखते हैं. स्टेप नंबर 3, क्लिक डाउन एरो टू फाइंड मोर स्टैम्प्स. अब क्या है देखो बेटा, एज यू कैन सी देयर आर 2 एरोज, डाउन एरो एंड अप एरो. आप देख सकते हैं 2 एरोज हैं यहाँ पर. जैसे मैं पेंसिल से पॉइंट कर रही हूँ, डाउन एरो मतलब नीचे की तरफ, और ये आपकी अप एरो है. सो बेटा हम डाउन या अप एरो में हम तब क्लिक करते हैं जब हमें इन स्टैम्प्स के अलावा और स्टैम्प्स चाहिए. तो डाउन एरो का मतलब होता है कि वो स्टैम्प्स की जो लिस्ट है वो आपको नीचे मिलेगी. अब मुझे मेरा स्टैम्प चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, आई वॉन्ट द पिक्चर ऑफ केक. सो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे वो पिक्चर यहाँ नहीं मिल रही है बेटे तो मैं इधर नीचे डाउन एरो पे क्लिक करती जाऊँगी. ठीक है, ये देखिए आपके पॉइंटर अभी हैंड का था, ये हैंड को जब आप इस डाउन एरो पे लेकर आएंगे तो ये पॉइंटर की शेप चेंज हो जाएगी. होगी बेटा. अब आप सिंगल क्लिक करते जाइए. आपको देखो बहुत सारे पिक्चर्स, आप नीचे फ्रूट्स की सारी पिक्चर्स आ रही हैं आपकी. ठीक है,
या अब आपकी कोई पिक्चर ऊपर है नीचे नहीं है तो आप यहाँ अप एरो पे क्लिक करेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्लिक करते जाइए। ओके, ठीक। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कम टू स्टेप नंबर 4। ओके, चूज अ स्टैम्प फ्रॉम द सिलेक्टर एंड क्लिक ऑन इट। अब आपको पता है बेटा कि ये जो पार्ट है हमारा, इसे हम सिलेक्टर बोलते हैं। अब जो आपको इसमें से स्टैम्प चाहिए आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी विल डू। ये है हमारी केक की पिक्चर, तो मैं अपना पॉइंटर यहाँ लेकर आऊँगी और मैं यहाँ लाके क्लिक कर दूँगी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, स्टेप नंबर 5, क्लिक ऑन द ड्राइंग कैनवस। अब हमें इस पिक्चर को कहाँ पेस्ट करना है बेटे? इधर इस ड्राइंग कैनवस पे। तो जब हम पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हम इस ड्राइंग कैनवस पे क्लिक करेंगे वेयर यू वांट टू पेस्ट द स्टैम्प। हम यहाँ बेटे इस ड्राइंग कैनवस में क्लिक करेंगे जहाँ हमें पिक्चर पेस्ट करनी है। ठीक है, सो अब हमारी ये पिक्चर पेस्ट हो चुकी है, हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको यहीं करती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? कम टू नेक्स्ट पेज बेटा। अब मैंने यहाँ, ये देखिए, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, सो मेरी ये सिलेक्टेड पिक्चर पेस्ट होगी बिल्कुल आपके स्टिकर की तरह। स्टिकर होता है ना बेटा, एक जगह से उसको निकाल कर उसको दूसरी जगह आपको सिर्फ पेस्ट करना होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 51। कम टू दिस लाइन बेटा, द सिलेक्टेड स्टैम्प गेट्स पेस्टेड ऑन द ड्राइंग कैनवस। अब आपने देखा कि आपकी ये जो पिक्चर आपने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पेस्ट होगी बिल्कुल आपके स्टिकर की तरह। ठीक, नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन, वी कैन यूज द बटन्स एट द बॉटम ऑफ द सिलेक्टर। बॉटम मीन्स नीचे, फॉर मोर ऑप्शंस। अभी कहते हैं बेटा आपका ये जो सिलेक्टर होता है इसमें नीचे यहाँ कुछ और बटन्स होते हैं इस तरह के, जो आप कुछ और ऑप्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो कौन से बटन्स होते हैं बेटे? ये देखो, दिस वन, ये देखो, ये आपका कौन सा बटन है? ये क्या करता है? दिस बटन गिव्स अ मिरर इमेज ऑफ द स्टैम्प। अब ये बटन आपका क्या करता है? आपका जो स्टैम्प होता है उसकी मिरर इमेज देता है। मिरर मीन्स जैसा आपको शीशे में दिखता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी एक मिरर इमेज देगा। चलो देखते हैं कैसे करेगा। ठीक है बेटा, सो बेटा अब ये जो आपका बटन है जो आपकी बिल्कुल, सो बेटा अभी हम इस बटन के बारे में प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ हम कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सी हियर बेटा, ये है आपका बटन। दिस बटन गिव्स अ मिरर इमेज। ये बिल्कुल मिरर इमेज देता है आपने जो पिक्चर पेस्ट की है इसकी। कैसे? इस पर क्लिक करो, अपना पॉइंटर आप लेकर आइए। ठीक है बेटे, यहाँ क्लिक कीजिए। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस। ये रहा आपका बटन। ओके, ये दिस वन बेटा, ये फाइन। यहाँ क्लिक कीजिए। अब अपनी इधर ड्राइंग कैनवस में क्लिक करो। ओके, जस्ट अ मिनट। फाइन, ये देखो, ये बिल्कुल आपके ऐसा दिख रहा है ना जैसे आपके शीशे में दिखता है, सेम आ रही है। ठीक, नेक्स्ट आपका बटन कौन सा है बेटे? ये देखो, दिस वन। अब ये कौन सा बटन है? दिस बटन गिव्स एन अपसाइड डाउन इमेज ऑफ द स्टैम्प। अब ये बटन क्या करता है? आपकी पिक्चर का अपसाइड डाउन मीन्स बिल्कुल उल्टा कर देता है। अगर उल्टी है तो सीधा कर देगा, अगर सीधा है तो उल्टा कर देगा। सो हम क्या करेंगे? ये है आपका बटन। ठीक है बेटा, दिस इज़ योर बटन जो आपकी पिक्चर को अपसाइड डाउन कर देता है। अभी देखो आपकी पिक्चर सीधी है, अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर उल्टी हो जाएगी। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन दिस। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना बेटा, आपका पॉइंटर होना चाहिए। अब इस पर क्लिक करो। ठीक, फाइन। अब यहाँ लेकर आइए और क्या होगा आपका? ये देखो आपकी केक की पिक्चर कैसी होगी? आपका केक उल्टा हो गया ना, बिल्कुल। सो ये अब दोबारा से अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो क्या होगा? फिर आपकी केक की पिक्चर सीधी आ जाएगी। ये देखो, है ना? सो इसमें फ़र्क है ना, अपसाइड डाउन। सो ये कुछ ऑप्शंस होती हैं बेटा। एक और ऑप्शन होती है इसमें जिसको हम कहते हैं, ये देखो, दिस थर्ड ऑप्शन,
दिस चेंजेस द साइज ऑफ द स्टैम्प। अब आपको स्टैम्प का साइज़ कितना बड़ा चाहिए या कितना छोटा चाहिए, तो वो हम साइज़ इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करोगे, इस ये जो आपकी बार है आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। ये सबसे छोटा साइज़ है बेटा और ये है आपका सबसे बड़ा। ठीक है, सो आपको मैं ये करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। सो बेटा ये हमारा साइज़ ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये सबसे छोटा है, ये मेरी बीच का साइज़ है और ये सबसे बड़ा। सो आपको सिंपली क्या करना है, उस साइज़ आपको जो भी साइज़ चाहिए सिर्फ अपना पॉइंटर उस बार पे लेकर आइए, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब सपोज़ करो मुझे थोड़ा और बड़ा साइज़ चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगी और ये मेरा 1 सेकेंड, ये मेरा आ जाएगा, देखिए बड़ा साइज़। ठीक, अब मुझे और बड़ा चाहिए तो मैं और बड़े पे क्लिक कर दूँगी, ये देखो कितना बड़ा साइज़ आ गया आपका। ठीक, अब एक बार मैं आपको सबसे बड़ा साइज़ क्लिक करके दिखाती हूँ। ठीक है, फाइन। सो मैं यहाँ करती हूँ ये सबसे बड़ा साइज़, ये देखिए, ये देखो आपके केक का कितना बड़ा साइज़ आ गया है ना। अब आपको सबसे छोटा साइज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ क्लिक कर दूँगी, ये देखो ये छोटा साइज़। सो आप जैसा चाहो बेटा, ठीक है, ये छोटा है, अब मैं उसे थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये बड़ा साइज़, ठीक है, ये और बड़ा साइज़ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा और बड़ा। ठीक, सो आप जैसा चाहे बेटा साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं इसका। ठीक है, सो ये हमारा स्टैम्प टूल होता है जिसमें आप पिक्चर्स को स्टिकर की तरह पेस्ट करते हो। देखो अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो आप ये लेफ़्ट या राइट एरो पे क्लिक करो, फिर ये डाउन एरो में जाओ। देखिए ये बहुत सारे आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं एक न्यू पिक्चर पे जाती हूँ। फाइन, सो फाइन, अब मैं यहाँ जाती हूँ, मुझे फ्लावर्स की पिक्चर चाहिए। देखो हम क्लिक करते जाएंगे जब तक मुझे वो मिल नहीं जाती है। ठीक है, ये देखो ये आपकी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, ये देखिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो बेटा। अब राइट साइड में जाओ, ये रहे आपके फ्लावर्स। ठीक है, अब मुझे और फ्लावर्स चाहिए तो मैं क्या करूँगी, डाउन एरो पे जाऊँगी। बेटा जब ये एरो आपकी ब्लैक कलर की होगी दैट मीन्स अब आप इस पर क्लिक करके नीचे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं फ्लावर्स की। ठीक है, सो आप कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये देखो आप साइज़ बहुत बड़ा है इसका, यहाँ से इधर देखो आप इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हो। फाइन, ये रहा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप कोई भी और फ्लावर यूज़ कर सकते हो। ये रहा आपका फ्लावर, ये रहा आपका रोज़ फ्लावर। ये देखो सिर्फ आपके स्टिकर की तरह पेस्ट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लिक करते जाना है। पहले आपको उस पिक्चर पे क्लिक करना है ताकि आप उसको सिलेक्ट कर सको, चूज़ कर सको, उसके बाद उसको आप ड्राइंग एरिया में सिंपल क्लिक से पेस्ट कर दो। ओके, ये देखिए ये है आपके डिफरेंट ऑप्शंस। ये देखो कितना बड़ा है, आप साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये रहा आपका बड़ा साइज़। और ऊपर आपको देखना है, ये देखो अलग अलग फ्लावर्स हैं आपके। ठीक है, ये देखिए दिस फ्लावर आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो इसका फ्लावर का भी। ये देखो, ठीक है, दिस वन। सो ये आपका एक स्टैम्प टूल होता है बेटा, यहाँ पर ये आपका स्टैम्प टूल है जिस पे आप क्लिक करके बहुत सारे पिक्चर्स को आप अपने स्टिकर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी बेटा कि इस स्टैम्प टूल के थ्रू हम एक बर्थडे कार्ड कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा। So beta, this is all for today. Beta, those who are having laptop or desktop computer at home, please do practice of these 2 pages. Okay, so we will meet in our next class with a more interesting topic. Till then, bye bye. Have a nice day.